सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, ब्रदर्स, हेडमिस्ट्रेस, अतिथिगण, शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं कर्मचारी। मैं स्वर्णिम पाठक स्वतंत्रता दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ एवं स्वागत करता हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर ब्रदर सुपीरियर ब्रदर साटो से निवेदन करता हूँ कि वे ध्वजारोहण करने की कृपा करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अपने अमूल्य जीवन की आहुति देकर हमारे देश भारत को आज़ादी मिली। इस आज़ादी के संघर्ष में हर आयु के भारतवासी ने अपना योगदान दिया और वे रणबांकुरे इतिहास में अपना नाम सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर गए। भारतवर्ष में अनेकों महापुरुषों ने समय समय पर भारतवर्ष में फैली हुई कुरीतियों को समाज से दूर किया। ऐसे महापुरुषों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना जीवन समर्पित किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नारोजी, अन्य प्रगतिशील स्वतंत्रता के वीर जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और हम सबके प्यारे बापू। इन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में गठित समस्त सरकारों ने भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे समाज और देश का विकास हो सके। वर्तमान सरकार ने भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे समाज के हर वर्ग का उत्थान हो सके। इसके कुछ उदाहरण हैं: स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं हर घर नल से जल योजना इत्यादि। अब मैं ब्रदर सुपीरियर ब्रदर साटो से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर छात्रों को संबोधित करने की कृपा करें। Respected principal, HM, teachers, and my future citizens of India. There are three things I'd like to share with you this morning. The first is to do with sacrifice. The second is to do with freedom. And the third, I'd invite you to join me in saying a prayer for India. All our freedom fighters, they went through untold suffering
for the freedom of our country. They suffered at their time unnoticed. They were in jails, they had to starve, they had to keep away from their families, and nobody acknowledged them. But yet, they went forward with it because they had a dream that we are enjoying today. So the question I put to you is this morning, what sacrifice are you prepared to make for the future of India? Maybe that's something that you can reflect on. Some youngsters who are not paying attention out there, they think this is too much for them. What sacrifice are you prepared and I prepared to make today for the future of India? And let me warn you, you will not get any medals for it. You will not get any acknowledgement for it. But you do it, why? Because in your heart you know this is the right thing to do for the future of my country. The second, freedom. We all want freedom. We don't want to listen to rules. Why are so many rules imposed upon us? And the question I put to you is, freedom is not to be thought of as freedom from what? But the question you ask yourself is, freedom for what? For what are you given freedom? For what do we appreciate and acknowledge the value of freedom? Freedom is meant to be exercised for the good of the country, for the good of others. Otherwise, it is not freedom. It is only selfishness. If freedom is directed towards myself, it is only selfishness. But freedom used for the good of others, that is true freedom. So ask yourselves, how are you exercising the freedom that you have in small amounts as is expected in a school setting? Are you using your freedom for your own selfish needs or for the good of others? All our freedom fighters, they use their freedom to bring about good for others. So my first question, what sacrifices are you making now for the good of India? How are you using your freedom? For the future good of the country or for your own selfish purposes? And you know where that will lead to. And last, I would request you to join me in a prayer for India. We call on the Almighty to help us in doing our small bit for our country, making our small sacrifices, using our freedom for the good of others. So can I request you to join your hands, close your eyes, bow your heads, and repeat this prayer after me. It is a little lengthy prayer, but let's make it our collective prayer. This is our prayer for our country. All-powerful God, you are present in the entire universe. And in the smallest of your creatures. You embrace with your tenderness all that exists. Pour out upon India the power of your love. That we may protect life
and beauty. Fill us with peace. That we may live as brothers and sisters, harming no one. O God of India, help us to rescue the abandoned and forgotten of our country, so precious in your eyes. Bring healing to our lives, that we may protect our country and not cause damage to it. That we may plant beauty and goodness and not pollution and destruction. Touch the hearts of all Indians, especially those who look only for profit, at the expense of the poor and our Mother Earth. Teach us to discover the value of everything. To be filled with awe and contemplation. To recognize that we are deeply united with every one of our fellow Indians. Help us to make India a peaceful, vibrant, and a happy India. We thank you for being with us each day. Encourage us in our struggle for justice, love, peace, and true freedom. Amen. God bless us all. धन्यवाद ब्रदर। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सभागार की ओर प्रस्थान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानाचार्य ब्रदर पिंटो, सुपीरियर ब्रदर साटो, ब्रदर जेरोम, हेडमिस्ट्रेस, शिक्षकगण व मेरे प्यारे साथियों, हमारे विद्यालय के सभागार में मैं कृष्ण कक्षा 11वीं का छात्र आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पावन बेला पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा बधाइयां देता हूँ। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। साथ ही साथ पंडित जी ने लाल किले में झंडा फहराया था एवं नियति से वादा विषय पर भाषण दिया था।
उन्होंने अपने इस भाषण में कहा था कि वर्षों पहले हम भारतवासियों ने देश की आज़ादी की प्रतिज्ञा की थी तथा अब समय आ गया है जब हमें इस प्रतिज्ञा की हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पर्यावरण का निर्माण करें जिससे देश के प्रत्येक मनुष्य का विकास हो तथा जीवन में पूर्णता मिल सके। इसलिए ऐसे मौके पर हम भारतवासियों ने देश की आज़ादी की प्रतिज्ञा की थी और अब समय आ गया है कि हम अपने देश का विकास करें। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसके लिए हम सभी उत्साहित हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कक्षा 7 के छात्र शौर्य पांडे अपने विचार व्यक्त करने आ रहे हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, ब्रदर्स, HM, सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम सब यहाँ देश की आज़ादी को मनाने के लिए जुटे हैं। यह दिन हम सभी के लिए बेहद खास है। इस दिन को पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस पावन अवसर पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानी को याद करेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की कुर्बानी दे दी। इन कुर्बानियों के बदौलत ही हमें ब्रिटिश शासन से सैकड़ों साल बाद आज़ादी मिली। दोस्तों, आज हम जिस तिरंगे की छांव में खड़े हैं वो हमें जीवन जीने के सही तरीके सिखाता है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर दिखने वाला केसरिया रंग देश की ताकत और साहस का प्रतीक है। वहीं बीच में सफेद रंग शांति, सद्भावना और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। तिरंगे के सबसे निचली पट्टी पर हरा रंग देश के विकास और समृद्धि का प्रतीक है। झंडे के बीच में बना अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भारत की संस्कृति को उसके झंडे में देखा जा सकता है। साथियों, हर भारतवासी के लिए उसका देश सबसे पहले आना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को हमें नमन करना चाहिए। आइए इस शुभ अवसर पर राष्ट्र निर्माण, देश के विकास और सम्मान बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए पूरे ताकत के साथ बोले, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शौर्य। तेरी मिट्टी में मिल जावा गीत को आधार बनाकर देश के प्रति अपना प्रेम व समर्पण भाव नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्यालय के छात्र। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। बन के मैं
हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल गुल के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल गुल के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विद्यालय के छात्र विभिन्न नेताओं के विचार अपने अपने तरीके से प्रकट करने आ रहे हैं। सभी उपस्थित दर्शकों को नमस्कार। आज हम सभी एक ऐतिहासिक पल का स्वागत कर रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में यह दिन हमें हमारे वीर शहीदों की स्मृति में एक नई ऊर्जा और उत्साह देता है, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कठिनाइयाँ और संघर्ष हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हार नहीं माननी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अपने आत्मसमर्पण, संकल्प और साहस से इस महान यज्ञ को पूरा किया और हमें एक स्वतंत्र भारत का उपहार दिया। आज हम लोग मिलाने जा रहे हैं देश के कुछ ऐसे महान लोगों से जिन्होंने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, ना ही कभी देश की कमियां गिनाई और अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया। क्या क्या न देखा मेरे भारत ने, क्या क्या न सहा मेरे भारत ने। मैं मोहनदास करमचंद गांधी आज देखता हूँ अपने भारत को, अपने इस देश को, तो एक सुकून सा महसूस होता है मेरे दिल को। मैं बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता के प्रारंभिक काल में मैंने कई कर्म किए और नए विचार रखे, जिससे अंग्रेजों ने मुझे अशांति का पिता नाम दिया। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज का युवा अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, क्या उसे भी अशांति का दूत नाम दिया जाएगा? शायद नहीं। खुशी होती है मुझे यह देखकर कि आज मेरे देश के नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून का एक एक कतरा देश के नाम न्यौछावर कर दूंगा। गर्व है मुझे अपने जीवन पर। आज आजाद हिंद का हर एक व्यक्ति खुल के सांस ले रहा है। मैं अब्दुल कलाम पैदा हुआ गरीबी में, पला बढ़ा गरीबी में, पर इस गरीबी में रहना मुझे मंजूर ना था। भरोसा था केवल मेहनत पर। इस मेहनत के बल पर रॉकेट उड़ाया और मिसाइल मैन कहलाया। जब मैं आज के वैज्ञानिकों को देखता हूँ मुझे गर्व होता है, खुशी होती है आज के युवाओं को चंद्रयान उड़ाते हुए देखकर। मैं संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो किसी धर्म में नहीं मानता, सिर्फ उस धर्म में मानता है जो समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता सिखाता है। वो धर्म जिसमें ना ऊंच नीच का भेद हो और ना अमीरी गरीबी का डर। आज मेरे देशवासियों को हर जगह एक समान अधिकार मिल रहा है। इसे देखकर आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आप, मैं, हम सब एक हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू, मैं आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बच्चे थे मुझे बहुत प्यारे और सभी मेरे दुलारे। चाचा नेहरू नाम दिया और मैंने भी उन्हें बहुत
अब आज जब मैं अपने बच्चों को सफलता के शिखर पर देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे देश के हर एक बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन वह हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम ले सकता है। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। मैं भगत सिंह कितना कुछ सहा, कितना कुछ करा, हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। जीते जी आजादी न सही, देश प्रेम की चिंगारी तो जला गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना कि जोर कितना बाजुए का दिल में है। तुम कौन? मैं एक मामूली सैनिक। नाम तो केवल मैं हरभजन सिंह, मगर लोगों ने मुझे दर्जा दिया बाबा हरभजन सिंह का। कहने को तो सैनिक कुछ नहीं, मगर सोचो तो उसकी कोई तुलना नहीं। मृत्यु के बाद भी एक सैनिक अपनी ड्यूटी निभाता है। देवी देवताओं के मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर लोगों ने मुझे भगवान का दर्जा दिया और मेरे लिए मंदिर बनवाया। मृत्यु के बाद भी मैंने सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। आज भी मैं अपना कर्तव्य भली भांति निभाता हूँ उन सैनिकों के साथ जिन्हें ना तपती धूप में झुलसने का खौफ है, ना ही ठिठुरती सर्दी में मरने का। उन्हें डर है तो अपने देश का, जिसके लिए वो हर पल तैनात है और जिसकी वजह से आप लोग चैन की नींद सोते हैं। केवल देश की कमियां गिनाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा तब जब हम सब अपने से बढ़कर अपने देश के लिए कर्तव्य निभाएंगे, तभी मेरा भारत महान बनेगा। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का। अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधना अपनी भाषा का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की धन्यवाद। कक्षा 8 के छात्र निर्वाण उपाध्याय स्वतंत्रता दिवस पर काव्य पठन करने आ रहे हैं। Our flag does not fly with the wind. It flies with the last breath of each and every hero who died protecting it. So, ladies and gentlemen, here we are on our 76th Independence Day, privileged and exulting in our freedom. The freedom that's the result of the sacrifices and efforts made by thousands of freedom fighters across the country. Indeed, we are standing on the shoulders of giants. Renowned Hindi poet Vikas Bansal, in one of his poems, depicts the strength that reaches the mind of a warrior. It goes something like this. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में आए अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जंग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है।
तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। और तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? Today, as I stand here, I am continuously reminded of what must have gone in the minds of those soldiers of fortune who risked their lives just for our better tomorrows, and they did that without batting an eyelid, ladies and gentlemen. May we not use this freedom as a right to do whatever we want, but as an opportunity to do what is right. Happy Independence Day, everyone. धन्यवाद निर्वाण। अब हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी आपके सामने एक समूह गान सारे जहां से अच्छा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। कक्षा 5 के छात्र स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं। आदरणीय
उपस्थित समस्त छात्रगण, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। 15 अगस्त भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1857 से वर्ष 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त वर्ष 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया। धन्यवाद। धन्यवादों। अब कक्षा 5 के आदित्य जोशी तथा प्रियांश जोशी हमारे समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की, वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की, वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। जगत गुरु गोविंद और छत्रपति शिव का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ। छोड़ कर धरा को तोड़ आसमां की काली माँ। जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लाली माँ। जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ्र कीर्ति, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व को तारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। ए शत्रुदंडना रहा चहु दिशाएं देश की। ए शत्रुदंडना रहा चहु दिशाएं देश की। बता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। बता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी,
चेतन पांडे हमारे समक्ष काव्य पठन प्रस्तुत करने आ रहे हैं। सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, ब्रदर्स, एचएम मैम, सभी अध्यापकगण, अभिभावक और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मातृभूमि। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुखा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में रखकर जोश बड़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भगत सिंह राणा प्रताप का बहता रक्त तुम्हारे तन में, गौतम गांधी महावीर सा रहता सत्य तुम्हारे मन में, आने वाले नए विश्व में तुम भी कुछ करके दिखलाना, भारत के उन्नत ललाट को जग में ऊंचा और उठाए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद सुचेतन। हमारे विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र सबके समक्ष नृत्य तथा संगीत से उत्प्रोत एक नाटक प्रस्तुत करने आ रहे हैं। जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत सेनानियों को सादर नमन करते हुए मैं प्रणव प्रखर पांडे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वैसे तो हमारे देश का इतिहास अनगिनत नायकों के त्याग और बलिदान की वीर गाथा है। इन नायकों ने आजादी की अलख जनमानस में जलाए रखी और इसी का परिणाम 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र भारत राष्ट्र के रूप में परिणत हुआ और आज हम इस स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इन्हीं में से कुछ वीर क्रांतिकारियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का सूक्ष्म वर्णन आज हम यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद।
रखिए। माफ करना बाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चला कोई आखिरी मंजिल होगी। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल
फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें है जरूर करते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाता है वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़का जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! We expect others to do something. We tell what the politicians have to do. We ask, we say what the Prime Minister has to do, President has to do, Chief Minister has to do. In the school, what the principal has to do, what HM has to do, what the teachers have to do. But do we ask, what is my responsibility for my nation, for the future generations? Our parents, our ancestors have made a lot of sacrifices, and you see that sacrifices at home. Your parents make a lot of sacrifices, your teachers make a lot of sacrifices, our support staff, they make a lot of sacrifices so that we can celebrate today the Independence Day of our country. It's because of sacrifice of others. There are many teachers, students made a lot of sacrifices for the last weeks to celebrate this day. And I feel so proud when I saw the choir, the dance, and finally the beautiful skit. I think all of you enjoyed. I think they deserved a great applause, round of applause. It didn't happen in one day. It didn't happen in one day. There are so many who have worked behind the scene. We have seen. We know many of these great leaders like Gandhiji, Nehru, Tilak. So many. There are many other people we don't remember. There are many soldiers. There are many people who fought for the freedom. Their names are not mentioned. They worked very quietly. They may have sacrificed more than Gandhiji and Nehru. Quietly behind the scene. Today also we saw there are so many of us. I really do not know who have worked, but I wasn't here. We had almost 10 days of holidays, either the tournament and the teachers I know that they have come here in the evening, late evenings, mornings, preparing for the skit. Doesn't happen in one day. What does it say? Sacrifice. Success of our school, the success of the students, there is sacrifice so that we enjoy the freedom. Then my question is, don't we have to make some sacrifices? I feel very, very sad. Okay, I uploaded the final match between Sherwood and St. Joseph's on the video, and I could see both the schools cheering each other. We showed our love for the school. I'm not happy with that slogans. Same all the way. Jai Hind. But if you are not ready to make some sacrifices, I'm not asking to give your life. Okay, the small way, how we as Indian citizens, we are not even future citizens, we are the present citizens, how we can make our nation strong. First, let's do what we are supposed to do. Okay, take care of our country. As students, you don't have to go and fight the war. Can't we keep yesterday I saw all the paper rockets down there. You play, but can't you put that in the dustbin? That is our responsibility. That's the freedom. You see paper, do you pick it up? Okay, damaging the national property, maybe the school. You won't do that at home. So therefore, let our patriotism, let our love, not only on 15th of August or on the football finals. Today we have finals, Jovies. We go there and we shout, and other 364 days we do what we want. That is not love for our school. That is not love for our country. Let us do something. We must also learn to make others happy. Not that what I get. You remember, I'm sure most of you heard this quotation, John Kennedy's.
Ask not what your country can do for you. Ask yourself what I can do for my country. As a Semite, a Semian, ask what I can do for this school. I always ask myself, what can I do for my school today here? Teachers ask, what can I do for our children? And this is the result of a beautiful program that we had today. The speeches that are prepared, the choir that prepared, they ask themselves, how can I make my children happy? If you each teacher, each brother, principal, HM, coordinator, and the students say, how can I make others happy? How can I make others to enjoy the freedom that I get? They also should get that freedom. Let us also ask, what can I do for our co-workers who are working there? We are watching cultural program, they are preparing for tomorrow's basketball tournament. They may be cleaning the washroom. How can I make them happy? Not giving gifts one day on Labor Day. We have to go the other way. You are being wonderful, most of you did. So let us take that. That is two things what brother said, I just feel the freedom. To have freedom, everyone must enjoy the freedom. To enjoy the freedom, we also must make freedom, our sacrifice. Your parents, your mother must have made so many sacrifices right on the day you were born. Maybe before you were born. Okay? Mother never asks what I get. Mother will say what my child can get. So please do that. So that is a message that is there. And the two, today I also want to congratulate. Okay, I told you your responsibility, but I'm also very proud of our students and the staff. We have done extremely well in the games, even in the cultural. It has been a very rewarding year because of the hard work of the teachers and the players. When we start, we are under 14 cricket, they have already entered the finals. Under 17 will be also playing. Tennis we have been doing well. Football we have been doing very well. We won the zonal tournament. Minis we have come the first top 4. Jewels have reached the finals and everyone is happy. Tomorrow we have basketball. Okay, hockey we have done very, very well. And everyone speaks about our school. We have, let's see our strength. I'll tell you what is our strength here of Zen. And we must continue doing that. And how do I know the strength of the school? I've been here for many years. I've been in other schools also. And the report and the remarks of the other people entered here. Strength one is we are very, very lucky to have a beautiful campus. Let us thank God. And because we have a beautiful campus, it is not because of us. The brothers who came here, the school started in 1888, they made so many walls. Look at the wall of Sen. It didn't happen in one day. It happened so much hard work. I don't know how many would have died carrying that stone, those rocks. We have a beautiful campus. Let us take care of our campus. That is our strength. Second, our strength, I feel very, very happy when I go around. I think Mr. Nikhil knows, Mr. Knight knows, when you go, our teams go there. And we had a tournament here. Our hospitality and our friendliness. Everyone is welcome here. It doesn't mean that you can come at midnight and say, I want to visit the school. But if you ask permission, everyone, and all of you, take a lot of trouble to show them around. And you tell them how proud you are. And this is what I heard from the student, the captain of Sherwood. He told me, your students have been very, very friendly and been very, very generous. I feel very, very happy about it. Let us continue the study. Any visitor come. Third is respect. You give very respect. Maybe you show your respect in different ways. And the people who come, they say, your children are very, very respectful. And let us carry that is our strength. So I want to thank today all the teachers who have worked behind the scene. You may have seen some of them. Look, I mean, everything was perfect. You know, I was very, very emotional when I saw the skit there. It was well presented. And so many have been there, all the music teachers, the students. They could have enjoyed at home. They came during the holidays when DM declared a holiday. They came. They took the risk. Eventually, I told teachers not to call them because your safety is also important. And with a very little time, you have done a wonderful job. Thank you to all the coordinators, HM, okay, and the teachers, and all the students who have been part of this day. Thank you very much.
God bless you and happy Independence Day. Now you have said Jai Hind. Now I will say, let's move louder, whether me or you. Am I ready? I am ready. Are you ready? Okay, stand. Stand. This is we are going to prepare for our Jubilees finals. Jai Hind! No, I was louder than you. One man. Okay, you got 4 mics there. Jai Hind! I need lemonade afterwards. Yeah. Jai Hind! Thank you. God bless you. इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मैं सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का और उन सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाथों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सच मानिए तो आप सभी के बिना इस कार्यक्रम की सफलता असंभव थी। कृपया सभी विद्यालय गान के लिए खड़े होने का कष्ट करें।